of you, all dear viewers and dear aspirants, हमारे साथ में आकांक्षा हैं. She is one of the UPSC toppers of this year and she has got extraordinary marks in her optional and also very good marks in interview. इसके अलावा we'll understand how she has prepared, इनकी क्या preparation strategy रही है and what has she been working on, because she has given quite a few attempts, starting with some failures, starting with some disappointments, but ultimately she has made it. So welcome Akanksha to our session, discussion toppers के साथ में. So congratulations first. Thank you. मुबारक हो आपको, you have qualified this year. Yes, So Akanksha, पहले बताइए, was it a sense of joy, a sense of relief, or was it simply numb type कि results सुन के you did not know what to say, what to do? What was the reaction when you heard of the results? सर जब रिज़ल्ट आया था तो वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी और उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, तो कोई एक्साइटमेंट बनने ही नहीं दी कि PDF आई है और मैं उसमें नाम अपना टाइप करूं. बट सर उसके बाद में जॉय तो आई डोंट नो सर, इट वाज अ सेंस ऑफ रिलीफ कि ठीक है, हो गया, ओके फाइनली डन, डस्टेड, ऐसा था सर. बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो गए हैं तो सर उसमें सर सेंस ऑफ रिलीफ सबसे ज़्यादा. ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर 8th अटेम्प्ट था. Wow. So it must have been very, very tedious, tiring, keeping up with the pressure. Yes sir. Anyways, congratulations. Thank you sir. एक conversation चल रही है मीडियाज में about कि students are putting too much time in the preparation and they probably are wasting their youth and their career. Yes sir. If you had not qualified, do you think you would have the same type of a feeling, or you think you would have taken back something really valuable from the preparation? सर पर्सनली आई डोंट फील कि जो भी कोई एस्पिरेंट है जो भी अपने 6, 7, 8 साल प्रिपरेशन में लगाता है तो वो वेस्ट है. बिकॉज सर 2 तरीके के लोग हो जाते हैं, एक जो प्रिपरेशन है उससे पहले एंड यू चेंज आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. सर वो 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं. तो सर गिवन अ चांस और अगर मैं क्वालिफाई नहीं भी करती तो आई वुड नॉट हैव wanted to go back to that previous self of me. Okay. ये वाला self I love sir. आपका graduation background क्या था? Sir, I done my engineering from Delhi, IP University. It was in 2013 that I passed out sir. I did it from IT stream. Okay. Yes sir. So here we have an engineer with us who has done her IT, which is of course one of the important trends. Yet she is very clear that is not the line she would have wanted to go back. No sir. So आपका जो preparation है, you think it made you a different person, it made you a better person. Yes. How did it help you overall as a person? सर नंबर 1 तो इन अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर्स. सर पहले तो आई नो कि कोई भी आर्टिकल पढ़ती थी तो क्या होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्या होता है फॉर दैट मैटर फेडरलिज्म, सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाता था. आफ्टर सर प्रिपेयरिंग फॉर सो लॉन्ग और ये सब तो सर मुझे समझ आती है अब चीज़ें क्या है, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है हमारी कंट्री का, कैसे इकोनॉमी वर्क कर रही है, हिस्ट्री क्या थी. और नाउ आई स्टार्टेड गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू हमारी कंट्री, क्योंकि सर पूरा लेगेसी पढ़ लिया उसमें कि कैसे कैसे किसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है सर उसमें. और सर मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्टडीज़ ने बहुत हद तक शेप भी किया है मेरी पर्सनालिटी को, द पर्सन दैट आई हैव बिकम नाउ आफ्टर. यू आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. यस सर. You understand the political system better. Yes, sir. मेरे ख्याल से you become a better citizen if nothing else. Yes sir. Right? More aware, more conscious of your responsibilities. Yes. But ultimately ये skill कहाँ use करते हैं आप? सर अगर UPSC नहीं तो मे बी आई वुड हैव ट्राइड कि जो बाकी आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं उनकी लाइफ बेटर बना पाऊँ. तो जो भी मैंने नॉलेज गैदर करी इसमें, जो भी स्किल्स गैदर करे, मैं वो आगे पास ऑन कर देती. And you think that's a viable career to go after? इसमें prospects हैं आपको लगता है? Yes sir. That's an important learning for all dear aspirants कि ये preparation is not a regular type of preparation. ये बहुत कुछ सिखा देता है as a person, सिखा देता है in terms of awareness, and I think education का sector है, इसमें बहुत absorption capacity है. Yes sir. Mentors, teachers, content. Yes, sir. It's a booming sector in some ways. Yes sir.
Nevertheless, we are very happy for you, Akanksha. आपने qualify किया, you are definitely deserving person, all efforts you put in. तो ये बताइए कि आपका motivation क्या था to get into the process? What was your motivation? Sir, after I graduated in 2013, I didn't know anything, but I know just one thing कि IT sector is something जिसमें मुझे नहीं जाना है. तो this was I was very clear. Okay. तो सर उसका ब्रेक लेने के लिए, और सर पर घर से प्रेशर था कि अब तुमने इंजीनियरिंग कर ली है, सब तुम्हारे साथ के जॉब कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं ले रही हो. मैं प्लेसमेंट्स में भी नहीं बैठी थी. उस प्रेशर से बचने के लिए आई थॉट कि ओके कनाडा में लेट्स डू समथिंग, क्योंकि मेरे कोई रिलेटिव है जो वहाँ रहते थे. तो सर वो एक एस्केपिंग मैकेनिज्म था मेरा कि घर के प्रेशर से एस्केप करने के लिए. बट सर वहाँ पे जाके जब मैं अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही थी तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर अ NGO कनाडा में. वो NGO छोटे बच्चों के लिए सर फूड का अरेंजमेंट करते थे. ओके. हाँ, तो सर मुझे ऐसा लगा कि कनाडा इतनी प्रॉस्परस कंट्री है, स्टिल दे केयर सो मच फॉर देयर पीपल, और वो वहीं पे रह के अपना काम कर रहे हैं एंड एवरीथिंग. तो सर वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अपनी कंट्री वापस जाना चाहिए. और सर मुझे कभी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील नहीं हुई कनाडा में. सर अपने लोग इट वाज अ रियल पैशन, सोसाइटी के लिए कुछ करना है. यस सर. ओके, चिल्ड्रन में भी योर इंस्पिरेशन थे. यस सर. एंड द लव फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. यस. एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल मोटिवेशन. ऑल द यूथ अगर ये जज्बे में आ जाता है कि कंट्री के लिए कुछ करना है, अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कैरियर टू एक्सप्लोर. यस सर. यस. ओके. अच्छा, ये बताइए कि हाउ आर यू एज अ पर्सन? अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन और यू आर अ वेरी स्ट्रेटेजिक and a focused type of preparation, not that grind types, or are you more laid back and you let things happen? What kind of person are you in preparation? Sir, I was very hardworking. Okay. Not laid back at all. But the examination, a lot of people talk about UPSC is all about luck. It's all about a chance factor. It is unpredictable. So, did that impact your preparation, or you believed कि yes, मैं करूँगी तो हो जाएगा types? Sir, I तो believe कि hard work ही होता है. I thought कि अगर मैं जो वो demand कर रहे हैं, if I can fulfill that demand, तो why not? तो sir. So what was the reason for initial failures? You I believe आपको prelims निकालने में दिक्कत हुई थी. Yes. So what are the reasons? Why were you slipping on the prelims? सर एक तो मैं टेस्ट नहीं लगाती थी शुरुआत में. ओके. और सर मुझे ऐसा लगता है जो सर बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो मेरे क्लियर नहीं थे. इतना सारा सर मटेरियल है मार्केट में पढ़ने के लिए यूपीएससी का, तो मैं रेफरेंस बुक मैंने शुरुआत में ही उठा लिए थे पढ़ने के लिए. ओके. और मुझे नहीं पता था बेसिक एनसीईआरटी से कैसे बिल्ड करना है और क्या. तो सर वो मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया मेरे फेलियर में, कि मुझे छोटे छोटे से कंसेप्ट ही नहीं पता है, एंड देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूँगी. It was gap on your preparation Yes. part largely, not luck thing or नहीं sir. not unpredictability. Okay. Okay. उसके बाद में सर इट वाज 2020. उस टाइम पे सर मैंने बहुत रिगरस प्रैक्टिस किया था प्रीलिम्स के टेस्ट के लिए. दिन में भी लगाए, रात उसके बाद शाम को भी. How many tests you must have given? सर 60-65 टेस्ट. Wow. 60-65 tests, morning, evening, Yes, evening, maybe for what, 3-4 months, 2-3 months? हाँ सर, वो कोरोना में जो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था जब, Okay. वो उस पूरा टाइम सर मैंने इसी में यूटिलाइज किया था. सर उसके बाद में आई क्वालिफाइड जीएस पार्ट बहुत अच्छे मार्जिन से, बट सर सीसेट आई फेल उस वाले साल में. Okay. क्योंकि सर वो दोनों टेस्ट मैंने जीएस के ही लगा दिए, मैंने सीसेट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस टाइम. सर वो लर्निंग थी मेरी कि जीएस और सीसेट 2 पेपर है तो दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है. क्योंकि सर वो सीसेट में फेल हो जाना है तो सर ब्लॉट है. Yes, not blot, but definitely not what you want to get trapped in. Yes, Okay, sir. qualifying paper है. Yes. So अगर मैं बोलूँ कि आकांक्षा आप अगर दोबारा प्रिपरेशन करती हैं, okay, so क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करती हैं? एक तो आपने कहा कि बेसिक्स पढ़ लेती हैं आप. Yes, sir. We are talking about a strategy and approach Akanksha has followed, which ultimately gave her the results.
तो स्ट्रेटेजी में नंबर 1 इज बेसिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है Yes. NCERTs. Yes. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू वुड हैव डन? सर अगर मैं दोबारा जाना चाहूँगी तो सर मैंने कोचिंग में एनरोल किया होता। आई डोंट नो सर, लोग बोलते हैं कि नहीं करना है एनरोल, बट सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने किया होता एनरोल तो मुझे यू हैव नॉट टेकन कोचिंग फॉर GS? नो सर। ओके, तो सर मुझे लगता है कि मेरा टाइम जो 8 अटेम्प्ट्स हो गए वो आई थिंक हाफ हो जाता, क्योंकि मुझे एक राइट गाइडेंस और मेंटरशिप मिल जाती उसमें। सर इनिशियली मुझे ये भी नहीं पता था कि UPSC एग्ज़ाम के लिए एक सिलेबस होता है, और मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना। ओके, तो सर इतना लैग था, क्योंकि जब मैंने किया था स्टार्ट इट वाज इन 2017 टाइप्स, तब सर इतना इंटरनेट नहीं था। ओके, और सर इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो अगर तो सर आई विल सजेस्ट कि अगर तो किसी के घर में कोई है जो उनको गाइड कर सकते हैं राइट वे में, तब तो ठीक है, कोचिंग को स्किप करा जा सकता है। लेकिन सर अगर कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई थिंक कोचिंग एक रूट दे देता है कि ठीक है इस तरीके से प्रिपेयर करना है, और फिर अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो इट्स अल्टीमेटली योर ओन हार्ड वर्क विच पेज। सो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के लिए एक मेंटोर या कोई क्लासरूम सेटिंग वुड हैव हेल्प्ड यू? यस सर। ओके, एंड डेफिनेटली टेस्ट के बारे में यू हैव बीन अ बिट मोर वोकल अबाउट इट, कितना Yes. प्रैक्टिस कर पाए? यस। Okay, fine. अच्छा, for the mains preparation, was the strategy a bit different? What did you have? Because आपने mains 2 बार दिया है? सर दिस वाज थर्ड। Third attempt, Third okay. attempt. So how did it work out for the mains? How was the preparation for the mains? उसमें कैसे करती थी आप? सर मेंस में जो पहले 2 अटेम्प्ट्स थे उसमें सर मैंने टेस्ट नहीं लिखे। सर वो मेरा कांस्टेंट था, प्रीलिम्स से भी और मेंस का भी। इस बार सर आई डिड बहुत सारा आंसर राइटिंग, और पेपर भी नहीं पूरे होते थे पहले वाले अटेम्प्ट्स में। सर दिस टाइम तो पेपर कंप्लीट हुए, वो इसीलिए हुए क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर लिया था लिखने का। Okay. बट सर आई थिंक बहुत इनफ नहीं किया, तो वो लैक रह गया GS के थोड़े मार्क्स में। अगर मैं लिखने के बाद में ज़्यादा चेक कराती और ज़्यादा इनपुट लेती कि क्या कैसे और उसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आई गेस सर थोड़ा मार्क्स मेरा So बेटर practice and tests were a very important part of your preparation. यस सर। You are hard working. आपने नोट्स कैसे बनाए थे? How did you make your notes? आप कैसे बुक्स पढ़ती थी? कोई स्ट्रेटजी था आपका उसमें? सब शुरुआत में तो मैंने बुक्स में ही हाईलाइट किया था। Okay. एकदम शुरुआत से नोट्स नहीं बनाए थे। ओके, जब सर बुक्स पढ़ते टाइम जो कोई चीज़ जैसे रिकॉल नहीं हो पा रही है, सिर्फ वो चीज़ के नोट्स मैंने बनाए थे जो जहाँ पे मेरे को दिक्कत आती थी। ट्रिकी कंसेप्ट्स होते हैं जो ज्योग्राफी में भी फॉर एग्जांपल सर, तो सर सिर्फ उन चीज़ों का जहाँ पे एकदम से रिकॉल नहीं हो पाता दिमाग में कि ठीक है ये है ये कंसेप्ट, उन चीज़ों के नोट्स थे सर। and then how did you ultimately consolidate all of that? सर मैंने पहले से ही शॉर्ट पॉइंटर्स ही बनाए थे। Okay. हाँ सर। So you had pointers, you had summaries with you. यस सर। Okay. और सर ये समरीज एंड एवरीथिंग सर ज्योग्राफी में मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो पिछले 2 अटेम्प्ट्स में तो सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था 3 महीने में कैसे कोई इंसान 2 पेपर का पढ़ सकता है ज्योग्राफी। इस बार सर वो साइनॉप्सिस एंड ऑल वन पेजेस जो आप बोलते हो, वो सब सर मेरे पास में रेडी था, तो आई कुड 3 महीने में सर आई कुड रीड एंड रिवाइज एंड री-रिवाइज एंड Okay. दैट वाज द रीज़न आई कुड प्रोड्यूस इन द पेपर। अब सर वो नहीं होता अगर खाली मेन उससे टेक्स्ट बुक्स वगैरह से अगर मैंने रेफर किया होता तो सर वो इतना रिकॉल नहीं हो पाता है बाद So में। you have taken the pains to summarize, Yes, sir. to concise करके Yes. revise करना। यस सर। तो आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ती थी आकांक्षा? सर ऐसे घंटे सर ऑन एन एवरेज 8 आवर्स मेंस के टाइम। And how much of this was towards revision? सर 8 में से आई वुड से 5 आवर्स फॉर रिवीजन और 3 नया का। No. That's a very intense revision Yes, that you sir. had. Yes, sir. And how many rounds of revision you must have done? सर 2.5 2.5 approximate rounds of revision. So notes बनाना, consolidate करना, revise करना बार-बार, and revise the whole thing, okay, as frequently as possible, and which is something you had not done in the initial attempts of yours. यस सर। Okay, and anything that you think
was helping you to score good marks in, because आपके geography में marks you have scored more than 280, 283. Yes, sir. Okay, and that's very good score. Yes, sir. Paper 1 में she has got 160 in paper 1 and paper 2 123. Yes. It's very good marks, very high marks, 280 plus हैं. तो आपने geography में क्या किया था? What was your strategy in geography preparation? सर स्ट्रैटेजी थी कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे थोड़ा Okay. स्ट्रेस दिया, उसके बाद सर बहुत ज़्यादा रिवीजन, और सर जो मैप्स होते हैं पेपर नंबर 2 के लिए, क्योंकि सर लास्ट टाइम आई स्कोर्ड 62 इन पेपर नंबर 2. 62? Yes, sir. Okay. तो That must have been I think it's a fluke, that's just a bad luck. Sir, 62 लाना बहुत impossible है मेरे ख्याल से. Anyways, yes. हाँ सर, तो उसमें सर मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ और जो रीजनल मैप्स होते हैं उस सर मैंने प्रोग्राम लिया था, तो आपने भी बताए थे काफ़ी सारे मैप्स, वो सारे मैंने सर नोटबुक में अपने नोट कर लिए थे, और मैंने उनको बहुत ज़्यादा जितना यूज़ कर सकती थी उतना यूज़ किया था. जहाँ वो नहीं भी बोल रहा था आंसर, वहाँ भी यूज़ कर दिया था सर. Yeah, we're very proud. आकांक्षा हमारी स्टूडेंट रही हैं, she's part of our courses, and that is something I do insist on. GS में भी इस पॉसिबल है, जोग्राफी में पॉसिबल है कि यूज केस स्टडीज, बिकॉज ह्यूमैनिटीज में केस स्टडीज आर द सोल ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट. Case studies, regional maps Yes, you have sir. talked about. Okay, and were you able to incorporate current affairs also into your answers? Sir, to an extent, yes. Yes, you did. Yes. Because questions काफी current affairs based Yes, होते sir. हैं, Yes, sir. तो applied हो जाते हैं. So congratulations again. I think it's very good marks you have got in geography. Interviews was very interesting because you have scored almost 170. That's pretty good marks for interview. And Akanksha tells me that interview के लिए बहुत ज़्यादा conscious preparation through current affairs नहीं किया था इन्होंने. So let me ask her, Akanksha, what was your interview strategy? सर ऐसी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं थी इंटरव्यू के लिए. सर आई वॉज वेरी लेड बैक इंटरव्यू में, तो जो भी मेरे को हार्ड वर्क करना था आई डिड इन प्रीलिम्स और मेंस. उसके बाद में सर आई रिमेंबर कि आई हैड अ टॉक विद यू. तो शुरुआत में तो सर मुझे लग रहा था कि 8th अटेम्प्ट है, आई डोंट नो इफ दे विल गिव मी मार्क्स और नो, और पॉसिबल भी है क्रैक करना. एंड देन यू सेड कि नहीं 11th अटेम्प्ट में भी होता है लोगों का, तो दैट गिव मी सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, अगर ठीक से होगा तो हो जाएगा. सर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एज फार एज गोज, तो सर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और जो मैंने डेफ में अपना डेफ प्रिपेयर किया था ठीक से. सर इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया इंटरव्यू. And I'm proud to say again, Akanksha has been part of हमारे current affairs content team. आप जो current affairs पढ़ते हो गैजेट का एडुकेमी में, and we give lot of content otherwise students also, ये सब कुछ आकांक्षा के अंडर होता है. She is the one who collates. So I think that part of your preparation I hope helped you in interview also. यस सर. सर मैं बनाती थी तो मुझे सारे मेन थीम पता थे कि ठीक है ये चल रहा है, तो आई वॉज अवेयर कि ओके क्या हो रहा है. एंड देन फिर मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट है उस पर आई ब्रश्ड अप. So you think this work helped you? यस सर. In fact, invitation to students who are watching us, अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई में ऊब चुके हो मे बी, do come over, let's see if we can work together. इनफैक्ट मैं इनकरेज करता हूँ कि अगर एक बार आपका बेस बन जाता है, एक बार आपका एक सेट हो जाता है सम बिट ऑफ योर कंसेप्चुअल बेस, यू शुड स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज वो अलग तरह का पढ़ाई होता है वेर यू कैन लर्न व्हाइल यू आर आल्सो अर्निंग अ बिट. सो आई थिंक दैट प्रोबेबली हेल्प्ड हर इन सम वेज. नेवरदलेस इज ऑफ कोर्स योर एफर्ट्स अदरवाइज. अच्छा आकांक्षा, ये बताइए, वेर यू ऑलवेज अ वेरी गुड स्टूडेंट? व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट वेर यू इन स्कूल एंड कॉलेज? So very average student. Very average student. So you think it's possible for a very average student to qualify, or where you are just a matter of chance and luck factor? Sir, I was very average student but very hard working since my college, since my school days. सर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, तो वो ये था कि सर माय फादर ऑलवेज वांटेड कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, बट मुझे ऐसे लगता था कि सिविल सर्विसेज इज़ नॉट फॉर एवरेज पीपल, कि वो सर वो पढ़ते हैं ना IIT टॉपर्स एंड एवरीथिंग, तो सर वही था माइंड में कि ठीक है उन्हीं के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है. बट सर नाउ सिंस आई क्वालिफाइड, तो नाउ तो आई कैन से कि ओके इफ़ यू आर रेडी टू पुट इन हार्ड वर्क, तो सर यू कैन. Well, that's a brilliant, very inspiring, Akanksha. You say you're an average student, but एक कमिटमेंट था पढ़ाई के तरफ में.
एंड सेल्फ डाउट इज समथिंग आपको आता था प्रिपरेशन में, और यू ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा टाइप्स? सर नहीं सर, सेल्फ डाउट तो आता है 8 अटेम्प्ट के बाद में हुआ है, तो सर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो आ जाता है। तो सर उसमें आई वुड से फैमिली का सपोर्ट एंड देन टीचर्स का सपोर्ट, गुड मेंटर्स, सर वो बहुत हेल्प करता है उस चीज़ से कोप अप करने में। और सर उसमें सर एक स्पेशल मेंशन फॉर माय यंगर सिस्टर जो मेरे साथ में प्रिपेयर कर रही है। सर उसका बहुत इमोशनल सपोर्ट रहता था हर बार, क्योंकि सर हम देखते हैं साथ में कि साथ के लोग बहुत बहुत आगे जा रहे हैं और हम वही हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो फील हो जाता है। तो बट उस टाइम पे सर शी वॉज कॉन्स्टेंट, वो कि ठीक है हमने अपने लिए ये चुना है, तो अगर उसके अंदर आ रही है डिफिकल्टीज तो फिर अब क्या उससे डरना है, तो ठीक है करना ही है। The sister is also preparing. Yes, sir. So from all of us here, okay, we wish your sister the very best luck. Thank you, sir. She has been supportive of you, and I'm sure you can support her back now. Yes. So the story of Akanksha is very inspiring. Average student कहती हैं अपने आप को, but hardworking है. A person who did not have too much of self-belief in her also. She never thought it was meant for her, but somewhere her father inspired her to get into. A person who is very down to earth, very soft-spoken. Okay, she has a good history of repeat attempts, and she is where she is. Akanksha, any message for our viewers and aspirants? आप क्या कहना चाहेंगी? Because आप जो बोलेंगी, it will be part of shaping their choice and their study process also. Anything you want to share with our aspirants? Sir, I really want to say कि have believe in yourself and your hard work, and if I could do, anyone can do. That's a very modest way, but definitely very inspiring there. Akanksha, what do you think about the whole process of preparation? ये कब शुरू हो जाना चाहिए? अगर हम किसी को एडवाइस करना चाह रहे हैं, कब शुरू करें तो अच्छा है, so that they probably can do better. सर प्रोबेबली सर अगर एकदम एक्सट्रीम ले लूँगी तो आई गेस 10th, क्योंकि एंड देन यू कैन चूज़ आर्ट स्ट्रीम और फिर वही वाले सब्जेक्ट्स आपको आगे भी कंटिन्यू करने पड़ेंगे। बट सर वैसे अगर बोलूँगी तो ग्रेजुएशन के टाइम पर Okay. अगर आप डिसीजन ले लोगे तो आई थिंक जल्दी चांसेस होंगे कि सर्विस में इंडक्ट हो जाओ, एंड देन यू कैन गो हायर अप इन द हायरार्की. I personally feel कि yes, graduation should be a good stage to start off. Yes. At least basic reading, writing should be there. So that Yes. how were you good at reading, writing in general? Where skills were fine, or did you pick the skills after the graduation? सर आई हैड अ हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी. Okay. सो सर उससे मेरे आर्टिकुलेशन स्किल्स वर गुड फ्रॉम द बिगनिंग, बट सर वो पॉलिश किया धीरे धीरे विद आंसर राइटिंग, क्योंकि सर यूपीएससी में कुछ अलग है कि ज़्यादा डायमेंशंस कवर करने हैं, एग्जाम्पल्स एंड ऑल. वो सर धीरे टेस्ट सीरीज दे के थोड़ा बहुत चेक करा के, तो सर वो ग्रेजुअल प्रोसेस था. So students can start off a bit early, and I agree with you, because the writing skill is something that is the most difficult part to acquire. Reading तो पकड़ लेता है, याद भी हो जाता है, लेकिन जो क्राफ्ट करके बना कर लिखना है, ऑर्गेनाइज करना है, the sooner the student starts, the better. Yes, sir. And I think graduation में, I mean you can always agree disagree, मुझे लगता है graduation time में current affairs की awareness हो जाए. They know कि what is to be read and what is not to be read, or what can they focus on. That always helps the students a bit more Yes. in the process. Yes, sir. Akanksha, I want to ask you about, because in general आपका writing skills रहा है, and you have done well in your optional and interview अच्छे marks हैं. What is your thinking about essays paper? How important is essays, and how can we prepare for the essays paper? सर ऐसे आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है. सर इस साल तो इवन ऐसे सर डिटरमाइन करेगा आपकी रैंक टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट.
क्योंकि सर मुझे लास्ट टू लास्ट जो मैंने फर्स्ट ऐसे लिखा था उसमें आई गॉट 110 एंड देन आई गॉट 107 और दिस टाइम सर आई गॉट 89। तो अगर मुझे वो 89 की जगह 110 मिल गए होते तो मेरी रैंक सर वो बहुत इम्प्रूव हो गई होती। तो सर ऐसे को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए और नहीं कर सकते। और सर आई बिलीव कि ऐसे जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसको लिखना, क्राफ्ट करना कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, फ्लो, स्ट्रक्चरिंग एंड एवरीथिंग। सर 1 महीने में या फिर अगर लगे कि प्रीलिम्स के बाद में उसको मास्टर किया जा सकता है तो सर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शनल भी होता है। If I ask you कि आकांक्षा बताइए, how will you prepare essays all over again? Okay, what would you suggest कि आप कैसे process आप follow करेंगे that could have been supportive of your preparation overall? सर आई वुड से कि मैं रेगुलर एसेज लिखना इस बार इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगी, 2 हफ्ते छोड़ के मे बी एक, और उसके साथ में सर उसको रेगुलरली चेक करवाना और इनपुट्स लेना। उसके साथ में सर जो रीडिंग होती है सर एक ऐसे बेंट ऑफ माइंड होता है, क्योंकि अभी फिलोसफिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है यूपीएससी। तो सर उसमें कैसे कौन से कैसे एग्जाम्पल्स और किस तरीके से और डायमेंशंस में उस एसे को लिया जा सकता है। तो सर उसके लिए जब कुछ रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर में तो सर वो एसे का एक बेंट है माइंड का, जो कि आई वुड से कि वो धीरे धीरे डेवलप होता है। और वो मैं जो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें मैं सोच रही हूँ कि उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करूँ, क्योंकि अगर ऐसे में तो ऐसे प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट कैन यू डू टू प्रिपेयर फॉर एसेज? सर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे में, और उसके बाद में सर आई तो बिलीव कि हैविंग अ गुड मेंटर जो कि आपको बता पाएँ कि फ़िलोसफिकल ऐसे की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और क्या उसके अंदर इवन एक सिर्फ एक कोट को कैसे 5 पेजेस या 10 पेजेस में इलेबोरेट करना है विद अ नाइस फ्लो एंड स्ट्रक्चर, सर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो आई डोंट थिंक कि ऐसे खाली यूं ही किसी को पता चल जाएगा, तो उसके लिए गुड मेंटर्स सर आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर रीडिंग हैबिट्स? Do you read something beyond your UPSC books or? Sir, yes. I read non-fiction. I read mythology. Mythologies, okay. Yes, sir. Greek mythology, Indian mythology में इंटरेस्ट है सर मुझे। वो रीडिंग तो सर वो मैंने काफ़ी बार तो एसेज में इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई भी किया है, और इवन एथिक्स में भी वो यूज़ हो जाता है। That's a very important observation and good point here. Invariably मैंने जिसको भी पूछा है question about essays, I found the students who do well in essays are invariably those who have a good width of reading skills. Yes, sir. Exposure ज़्यादा है, they know ideas, they can quote people, they can relate to what they have read, books में हो, articles में हो. Yes, sir. So reading habit, I think it's an important part apart from writing तो है ही. Yes, sir. Thank you so much, Akanksha, for sitting through and answering our questions. Thank you. Our wishes to you. Thank you. We hope to see you to become a great officer. Thank you. And I hope all of you have acquired some idea about how to prepare. Okay, good luck to you, Akanksha. Thank you so much.